بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت میں حبس کی شدت برقرار، شہری حبس کے باعث پسینے سے شرابور ہونے لگے۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 23 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی۔ نیا سپیل پنجاب میں شدید بارشوں کا سبب بنے گا۔ PDMA نے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد یاسین سے۔ جی یاسین، کیا صورتحال ہے، آگاہ کیجیے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں گرمی اور حبس کی شدت برقرار ہے۔ شہری پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں اور محکمہ موسمیات نے آج سے 23 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ نیا سپیل پنجاب بھر میں شدید بارشوں کا سبب بنے گا۔ دوسری طرف PDMA نے بھی پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شہریوں کو بغیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے اور بجلی کے کھمبوں سے دوری بنائے رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ ماہرین طب کے مطابق انسانی آرام کے لیے عوام نمی کا تناسب جو ہے وہ 30 سے 50% تک ہونا چاہیے، مگر اس وقت عوام نمی کا تناسب جو ہے وہ 80% ہے، جو بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے اور پسینے بھی آ رہے ہیں۔ آج شہر میں کم از کم درجہ حرارت 27 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ ہوا کی جو رفتار ہے 9 کلومیٹر فی گھنٹہ اور دن کا 18 کلومیٹر تک ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں ممکنہ طوفانی بارشوں کے پیش نظر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنرز PDMA پنجاب کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ بچوں کو دریاؤں، ندی نالوں کے قریب جانے سے روکیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے PDMA پنجاب انتظامیہ، پولیس، ریسکیو کو ضروری پیشگی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنرز اور دیگر متعلقہ افسران کو فیلڈ میں موجود رہنے کے احکامات۔ بلائی پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ کے خدشے کے پیش نظر ضروری اقدامات کی ہدایت بھی کی ہے۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر PDMA پنجاب فوری متحرک، درکار وسائل مہیا کرنے کے لیے سرگرم۔ آبی گزرگاہوں کے ارد گرد آبادیوں کے لیے کشتیاں، لائف جیکٹ اور دیگر سامان مہیا کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں بھارت پاکستان میں کھلے عام دہشت گردی کر رہا ہے۔ اجیت دوول اور امت شاہ پہلگام ڈرامے کے اصل کردار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہترین جنگی حکمت عملی کی بدولت عظیم فتح ملی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ملکی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت خطے کا امن اور استحکام خراب کرنا چاہتا ہے۔ ایوان اقبال لاہور میں وارث میر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار بعنوان بھارت پر پاکستان کی عسکری اور سفارتی فتوحات کے عالمی اثرات سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بھارت پاکستان میں کھلے عام دہشت گردی کر رہا ہے۔ مودی سرکار کے دو اہم کردار اجیت دوول اور امت شاہ پہلگام ڈرامے کے کردار ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پر بھارت کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ جنگ کے دوران ہماری خفیہ ایجنسیز نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ جنگ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے زبردست قیادت کی۔ 9/11 سے لے کے آج تک اس کے سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ انڈیا خود ہے۔ اس نے اس وار کو یوز کر کے کشمیریوں کو دبایا، اس نے اس وار کو یوز کر کے ایک سیاسی تحریک کو دہشت گردی کی تحریک میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں تھا جس نے پاکستان کے اوپر پریشر نہ ڈالا ہو کہ بس اب آپ تو آلریڈی ایک لیول اوپر ہیں، آپ نے ان کے جہاز گرا دیے، آپ واپس اٹیک نہ کریں۔ فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر ان دونوں کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے وہ سارا پریشر سہا اور اس کے بعد انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ سیمینار سے خطاب میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا اختلافات کے خاتمے کے لیے ڈائیلاگ کا فروغ ضروری ہے۔ ملکی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ بھارت ایک انتہا پسند ریاست ہے جو خطے کا امن اور استحکام خراب کرنا چاہتا ہے۔ Great soldiers and airmen showed great operational readiness. They proved professional skills and sound strategy can outmatch numerical and technological advantage. The skies bore witness to this truth. Maintaining combat superiority, Pakistani Eagles shot down modern jets in quick succession, forcing the enemy
to ground its entire fleet. स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान ने अस्करी और सिफारती मैदान में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं, जिनके आलमी सतह पर दूररस और गहरे असरात मुरतब हुए हैं। मेरा वजारत खारजा का दफ्तर अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम में बार बार इस बात को लेकर अपना मुकदमा पेश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बांटी जाने वाली मौत है उसके शवाहिद हैं, उसके सबूत हैं। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर पंजाब असम्बली को वारिस मीर फाउंडेशन की तरफ से सवीनियर पेश किए गए। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास, ट्रेन ऑपरेशन के सेफ्टी इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ट्रेन डीरेलमेंट्स के वाक़यात पर इजहार बरहमी, बोले नाअहल और कब्रों तक महदूद अफसरान को रेलवे में रहने का कोई हक नहीं, सिस्टम से डमी कोचेस निकालें, चाहे कोई ट्रेन बंद ही क्यों ना करनी पड़े। मज़ीद मुतालिक जान लेते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी आज हंगामी तौर पर लाहौर आए थे और रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में आज उन्होंने हंगामी इजलास की जो है वो सदारत की है। ट्रेन ऑपरेशन की सेफ्टी इक़दाम पर जो है वो इन्हें तफसीली रेलवे अफसरान की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। ट्रेन डिलेज के वाक़े पर जो है वो उन्होंने इज़हार बरहमी किया। उनका कहना था कि नाहल और एयर कंडीशनर कमरों तक महदूद अफसरान को रेलवे में रहने का कोई हक नहीं है। सेफ्टी पर कोई समझौता जो है वो नहीं करूँगा और गफलत करने वालों के खिलाफ मेरा सुलह ऐलान जाएगा। उनका कहना था कि मैं वार्निंग देता हूँ कि सेफ्टी मामला को बेहतर बना ले या रिटायरमेंट ले लें। उनका ये भी कहना था कि सिस्टम से जो है वो डमी कोचेज निकालें, चाहे इसके लिए कोई ट्रेन बंद क्यों ना करनी पड़े। ट्रैक की मुसलसल ट्रॉलिंग इंस्पेक्शन करें और इसे ऑपरेशन के लिए जो है वो महफूज बनाएं। विजिलेंस के शोबा को तमाम जरूरी सहूलियात जो है वो फराहम की जाए। उनका कहना था कि ट्रेन ड्राइवर के हाथ में 1100। ठीक है फ़ाहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि PIA और श्रीलंकन एयरलाइन के दरमियान इंजीनियरिंग सर्विसेज का मुआहिदा। PIA श्रीलंकन एयरलाइन को लाहौर एयरपोर्ट पर इंजीनियरिंग सर्विसेज फराहम करेगा। मुआहिदे के तहत श्रीलंका की 4 हफ्तावार परवाज़ों को तकनीकी मामलत फराहम की जाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुआहिदा ज़र मुबादला के हसूल में अहम किरदार अदा करेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, PIA इंजीनियरिंग के शोबे की एक और कामयाबी ये है कि एयर लंका जो सी है उसने लाहौर के लिए हफ्तावार 4 परवाज़ों का आगाज़ किया है, जिन्हें मुश्किलात थी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले से। तो उन्होंने PIA के साथ ये मुआहदा तय कर लिया है कि आपको तमाम जहाज़ों को PIA के इंजीनियर जो से वो सहूलत फराहम करेंगे। इससे ना सिर्फ एक तो रेवेन्यू बढ़ेगा PIA का, जबकि दूसरी जानब इंटरनेशनल मार्केट में भी PIA के जो हिस्से हैं उनके भी इजाफा होगा। इसी तरह PIA की इंजीनियरिंग खदमात से इस्तेफादा करना PIA की इंजीनियरिंग सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का मुजाहरा है, ऐसा PIA तर्जमान का कहना है। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद ज़ीशान रज़ा की हिदायत पर बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बाटापुर की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। लाख रुपए मालियत की बिजली चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ थाना बाटापुर में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, इस कार्रवाई बारे बताइएगा। बिल्कुल जी, ये कार्रवाई बिजली चोरों के खिलाफ है, जिस पर DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की हिदायत पर बिजली चोरों के मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बाटापुर मोहम्मद सदीक की पुलिस टीम पे हमरा बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लाखों रुपए मालियत की बिजली चोरी करने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिम के खिलाफ थाना बाटापुर में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज था। शवाहिद की रोशनी में मजबूत चालान मरतब करवा के करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। रवां साल के दौरान बिजली चोरी के 16,513 मुकदमात में से 22,630 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर क्रैकडाउन जारी रखे हुए है, ये कहना था DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा का। और उनका ये भी कहना था कि ऐसे लोग जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जा रहा है। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका। मार्केट में चीनी के नर्ख पर अमल कराना इंतजामिया के लिए दर्द सर बन गया। होलसेल मार्केट में चीनी महंगे होने से परचून मार्केट में चीनी गायब है। कल से चीनी के सरकारी नर्ख में 2 रुपये फ़ी किलो इजाफा होगा। ये रिपोर्ट देखिए।
चीनी के निर्ख और दस्तयाबी का मामला हल न हुआ। 15 जुलाई से एक माह के लिए नाफिज चीनी के निर्ख पर अमल न हो सका। इंतजामिया चीनी मुकर्रर निर्ख 173 रुपए फी किलो पर जबरदस्ती फरोख्त कराने की कोशिश करती रही। बादामी बाग, गढ़ी शाहो, समनाबाद और गजुमता समेत शहर भर की मार्केटों में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। कई दुकानदारों ने चीनी 173 रुपए फी किलो लिख रखा है, लेकिन पूछने पर बताया जाता है कि चीनी दस्तयाब नहीं। 15 अगस्त से सरकारी निर्ख 2 रुपए इजाफे से 175 रुपए नाफिज होना था, ताहम नया निर्ख 2 रोज के लिए मौखर कर दिया गया। पीर से होलसेल मार्केट में चीनी का निर्ख 169 से बढ़कर 171 रुपए फी किलो हो जाएगा। एक्स शुगर मिल्स रेट 165 से बढ़कर 167 रुपए फी किलो हो गया। होलसेल मार्केट में मुकर्रर निर्ख पर चीनी फरोख्त कराने में इंतजामिया मुकम्मल नाकाम है। होलसेल मार्केट में चीनी 175 से 178 रुपए फी किलो रही। पीर से मार्केट में नए रेट्स पर अमल दरामद होना है। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब महंगाई की लहर बरकरार, सब्जियों और पोल्ट्री मसनूआत के निर्ख कम न हो सके। अशिया ज़रूरिया पर ओवर चार्जिंग ने अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। अवाम को महंगाई से निजात ना मिल सकी। टमाटर का सरकारी निर्ख 95 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 120 से 140 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। आलू 85 रुपए के बजाय 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। परचून में प्याज 80, लहसुन चाइना 350, अदरक 600 रुपए फी किलो है। लीमू और भिंडी 200, कद्दू 100, शिमला मिर्च 250 रुपए फी किलो दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 595 रुपए बरकरार है। ताहम बाज मुकामात पर ब्रायलर गोश्त मुकर्रर निर्ख से जायद पर फरोख्त हो रहा है। फार्मी अंडे 3 रुपए इजाफे से 294 रुपए फी दर्जन हो गए। अवाम कहते हैं कि एक बार फिर मार्केट में महंगाई की लहर है। मुर्गी का जो रेट है ना, वो अवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गया है और अवाम जो है ना महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा तंग है। महंगाई, गरीब आदमी पिस के रह गया है। आगे होता था गोश्त नहीं पका सकते, दाल पका लो, दाल नहीं पका सकते, सब्जी आलू पका लो। अब उनकी रेट देखे जरा। मार्केट जराये के मुताबिक ब्रायलर के निर्ख को इंतजामिया ने जबरदस्ती लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में जायद कीमत पर फरोख्त हो रहा है और ये तेजी जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने पाकिस्तान के टॉप 40 बिजनेस ग्रुप्स की फहरिस्त जारी कर दी है। रिपोर्ट में $5.9 बिलियन मार्केट कैप के साथ फौजी फाउंडेशन मुल्क का नंबर 1 बिजनेस ग्रुप है, जिसके 60% शेयर्स आवाम के पास है। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक की रिपोर्ट में कौन सी अहम शख्सियात और बिजनेस ग्रुप्स शामिल हैं और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, जानते हैं मोहम्मद हसन रजा की इस खसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान के अरबपति बिजनेस टाइकून्स बिजनेस ग्रुप्स में कौन कौन शामिल? मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने वेल्थ परसेप्शन इंडेक्स 2025 शाया कर दी। रिपोर्ट कारोबारी ग्रुप्स और उनकी सरमायाकारी की मालियत को जाहिर करती है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के उन 40 बड़े ग्रुप्स की निशानदही की गई है जो अपनी सलाहियत, आला गवर्नेंस क्वालिटी के बेहतरीन मयार और इनकलाबी विजन के हामिल हैं। 20 पब्लिक लिस्टेड ग्रुप्स व कॉर्पोरेशन में पहले नंबर पर फौजी फाउंडेशन है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.904 अरब है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सर अनवर परवेज का बेस्ट वे ग्रुप है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $4.513 बिलियन है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद अली डब्बा ग्रुप है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.591 बिलियन है। चौथे नंबर पर मियां मोहम्मद मनशा है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.399 बिलियन है। पांचवें नंबर पर हुसैन दाऊद हैं, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.390 बिलियन है। इस फहरिस्त में रियाद इदरीस, आरिफ हबीब, सुल्तान अली अलाना, सुहेब मलिक, नासिर महमूद खोसा, सुल्तान अली लाखानी, रफीक मोहम्मद हबीब, शेख मुख्तार अहमद, इफ्तिखार ए शिराजी, आमिर पराचा, एजाज हुसैन, अब्बास हबीब, मोहम्मद मकसूद इस्माइल, तारिक सैयद, जहांगीर सद्दीकी शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के 20 बिलियनियर बिजनेस ग्रुप्स में पहले नंबर पर सैयद बाबर अली हैं, जबकि फवाद मुख्तार, मियां अब्दुल्ला, सरदार यासीन मलिक, डॉक्टर गौहर एजाज, हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, हबीबुल्लाह खान, मीर शकीलुर रहमान, सैयद मोहम्मद जावेद, अकील करीम ढेडी, बशीर जान मोहम्मद, मियां आमिर महमूद,
नसरीन महमूद कसूरी, जहांगीर तरीन, पीर मोहम्मद दीवान, याकूब अहमद, अलीम खान, मियां एहसन, अशरफ मोकाते, शाहिद सोरते और नदीम मलिक भी इस फहरिस्त का हिस्सा है। 40 अरबपति बिजनेस ग्रुप्स बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये ग्रुप्स मुल्क में रोजगार की फराहमी और मुल्क की GDP में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और साथ साथ टैक्स की अदायगी में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर इन बिजनेस टाइकून्स को हुकूमत की जानिब से मजीद सपोर्ट और साजगार कारोबारी पॉलिसियां फराहम की जाएं तो ये मुस्तकबिल में न सिर्फ मुल्क की मईशत को संभाला दे सकते हैं बल्कि लाखों नौकरियां पैदा करके लोगों को बेहतर रोजगार के मौके भी फराहम कर सकते हैं। हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़क रहा है और पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ। हमारा ना कोई इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, ना हमारा किसी सियासत में। हमारा इंटरेस्ट तो पाकिस्तान की तरक्की में है और पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी कर सकती है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म अपने 20 टॉप बिजनेसमैन लेके जाता है और दिखाता है ये मेरा अंबानी है और ये मेरा अदानी है और ये मेरा टाटा है और ये मेरा बिरला है, तो आपको हम आज पाकिस्तान के जो है वो बेहतरीन बिजनेसमैन आपको पेश कर रहे हैं जिनको स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी 1-1 लाख आदमी एम्प्लॉय कर रहा है। एक आदमी $500 मिलियन एक्सपोर्ट दे रहा है एक आदमी इस मुल्क को। मैं ये चाहता हूँ कि आप इन जो है 40 लोगों को अपने साथ लेके चलें। मैं ये कहूँगा कि 40 लोग पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सनती तरक्की में ही मुल्क और अवाम की खुशहाली का राज पिन्हा है। पाकिस्तान में बेमिसाल कारोबारी टैलेंट मौजूद है। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलकर मुल्क को इसकी असल मुआशी ताकत दिला सकते हैं। These 40 champions already contribute significantly to employment generation, tax revenues and GDP growth. To enable them and to incentivize other businesses like them to double the impact over the next decade, Pakistan requires targeted policy frameworks that facilitate business expansion, encourage innovation, and support global competitiveness, creating millions of jobs and generating sustainable revenues for government's development programs. Pakistan possesses extraordinary entrepreneurial talent and business leadership. With EPBD's policy work and these 40 champions that we've identified leading the way, we will inshallah help Pakistan unlock its true economic potential. बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हम मिलकर बानियाने पाकिस्तान के ख्वाबों का खुशहाल मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान में ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद बेहतर किया जा सके। कारोबार के लिए आसानियां फराहम की जाएं, पाबंदियां, सख्त पॉलिसियां और ऐसी कानून साजियां जो मुल्क में कारोबारी ग्रुप्स के लिए परेशानियां पैदा करें, उनके खात्मे के लिए अमली इकदाम किए जाएं। 40 वो ग्रुप 20 टॉप कंपनीज जो पब्लिक लिमिटेड हैं और 20 टॉप कंपनीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो $1 बिलियन कंपनीज हैं। अल्लाह करे ऐसी 40 कंपनियां और बने। अल्लाह ताला इनको, यही वो घर हैं जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को लेके आगे जाएंगे। हमें इन सबको सपोर्ट करनी चाहिए। ये हमारे मुल्क में काम करते हैं, ये मुल्क में टैक्स देते हैं। आप सब को इतना बड़ा होना है इंशाल्लाह। एक दिन आपने टैक्स देना है, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, आपने एक्सपोर्ट लानी है इस मुल्क में। इंशाल्लाह मैं फिर दुआ करता हूं कि हम वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। डेप्यूटी वजीर आजम इसहाक डार के मुताबिक मुल्क में देर पा पॉलिसियों की अशद जरूरत है। हुकूमत और बिजनेस ग्रुप्स मिलकर इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। उन्होंने मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के इस इकदाम को सराहा। मैं एज ए पाकिस्तानी समझता हूँ कि बिजनेस में जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है, जो मैं सदर लाहौर चेंबर डिमांड किया करता था, उसकी बेपनाह ज़रूरत है। यानी पॉलिटिकल चेंज से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। बड़ी कोशिश की 20, 13, 17 के दरमियान, आप सब गवाह हैं कि एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से 5 बजट में नहीं हो सकी। वी आर पार्टनर्स। कौर साहब, आप ये ना फील करें कि हम अलहदा हैं, हम एक हैं।
میاں شہباز شریف آپ کے لیڈر ہیں, ہی واز پریزیڈنٹ آف دی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. بہت بڑی گریٹ کنٹریبیوشن یہ جو کتاب آپ نے دی ہے, اٹ از ویری گریٹ کنٹریبیوشن. جب حکومتیں کاروباری گروپس کو پالیسی سپورٹ دیتی ہیں تو پوری قوم خوشحال ہوتی ہے. ایسی ہی مثالیں جنوبی کوریا, جاپان میں بھی موجود ہیں. حکومت کو ان پالیسیوں کو اپناتے ہوئے ملک و قوم کو خوشحال بنانے پر سنجیدگی سے قدم بڑھانا ہوگا. آگے بڑھیں اور کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں تو آپ کو بتائیں کہ دبئی میں ہونے والے T20 ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے. سلمان علی آغا ٹیم کی قیادت کریں گے. بابر اعظم, محمد رضوان اور نسیم شاہ اسکواڈ میں جگہ نہ بنا سکے. سلیکٹر اور ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ کسی کھلاڑی کے کریئر پر فل سٹاپ نہیں لگا سکتے. T20 ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا. بابر اعظم, محمد رضوان اور نسیم شاہ اسکواڈ میں جگہ بنانے میں ناکام. پاکستان کے 17 رکنی اسکواڈ کی قیادت سلمان علی آغا کریں گے. فخر زمان, سائم ایوب, صاحبزادہ فرحان, حسن نواز اسکواڈ کا حصہ. محمد حارث, حسین طلعت, فہیم اشرف اور خوشدل شاہ 17 رکنی اسکواڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے. شاہین شاہ افریدی, حارث رؤف, سلمان مرزا, حسن علی بھی ٹیم میں شامل. محمد وسیم جونیئر, محمد نواز, سفیان مقیم اور ابرار احمد بھی اسکواڈ کا حصہ. ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر اور سلیکٹر عاقب جاوید کا کہنا ہے جو پرفارم کرے گا وہی کھیلے گا. کسی کھلاڑی کے کریئر پر فل سٹاپ نہیں لگا سکتے. فخر زمان کے اوپر ہمیں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. سائم ایوب جس طرح سے ینگ پلیئر آیا ہے اور اس نے امپیکٹ ڈالا ہے, سو آئی تھنک یہ بہت زبردست آپشنز ہیں ہماری اور اسی کے اوپر ہم ان کو بیک کریں گے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ فل سٹاپ تو نہیں لگا سکتا ہے نا. جو پلیئر پرفارم کرے گا وہی کھیلے گا اور اسی کو کھیلنا چاہیے. قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے بابر اعظم اور محمد رضوان کا T20 میں کریئر ختم نہیں ہوا. A player like Baba has an opportunity to play in the BBL and start to show that he's improving in those areas in T20s. And he's too good a player for us not to consider. 3 ملکی سیریز پاکستان, افغانستان اور UAE کے درمیان 29 اگست سے 7 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلی جائے گی. ایشیا کپ کا آغاز 9 ستمبر سے ہوگا. لاہور میں مارکا حق نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے. نوجوان کھلاڑی انڈر 15 اور انڈر 17 کیٹیگریز میں ایکشن میں دکھائی دیں گے. افتتاحی تقریب میں سیکٹری گیریزن گرین لاہور اطہر بھٹی, ڈائریکٹر PSF عرفان اصغر اور سابق وارڈ نمبر 3 گوگی علاؤدین نے شرکت کی. لاہور میں اسکواش کا میلہ سج گیا. پہلے روز دلچسپ مقابلے دیکھنے میں آئے. پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مارکہ حق نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ 17 اگست سے 20 اگست تک لاہور میں جاری رہے گی. ایونٹ کے کوارٹر فائنل تک کے میچز پنجاب اسکواش کمپلیکس میں ہوں گے. سیمی فائنل اور فائنل لاہور گیریزن گولف اینڈ کنٹری کلب میں کھیلے جائیں گے. چیمپئن شپ میں بوائز انڈر 15 اور انڈر 17 کیٹیگریز کے مین راؤنڈ میں 32 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں, جن میں 2 وائلڈ کارڈ انٹریز بھی شامل کی گئی ہیں. کافی اچھا ہے. لاہور میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. ایسی ٹورنامنٹ ہوں گے تو پاکستان میں کافی اچھے پلیئر نکلیں گے. اس طرح کے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے تاکہ پلیئرز کو پاکی پلیئرز کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے, ان کی گیم اچھی ہو. پنجاب اسکواش ایسوسی ایشن کے نائب صدر محمد منصور کا کہنا ہے ایسے ایونٹس کے انعقاد سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا. مارکہ حق کا آج اوپننگ سیرمنی کا سٹارٹ ہے اور اس میں جس میں لاہور گیریزن گرین کے سیکٹری صاحب آئے ہیں جنہوں نے اوپننگ سیرمنی کا آج شروعات کی. اس کا جو سیمی فائنل اور فائنل ہے وہ لاہور گیریزن گرین میں ہی کھیلا جائے گا. ایونٹ کی انعامی رقم فی کیٹیگری 10 لاکھ روپے رکھی گئی ہے. PSA کا کہنا ہے کہ لاہور گیریزن گرین نے مجموعی طور پر 20 لاکھ روپے رکھ کر نوجوان اسکواش پلیئرز کی حوصلہ افزائی کی ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کی ملاقات. گورنر پنجاب نے خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریوں بارے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے سیاست سے بالاتر ہو کر خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اقدام اٹھائے. پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑے گی. پاک فوج گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے. ہم سیاست سے بالاتر خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ملاقات کے دوران سیلاب اور ریسکیو کرتے ہوئے شہید ہونے والوں کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی گئی. رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کسانوں, مزدوروں اور نوجوانوں کی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی نمائندہ جماعت ہے. اقلیتوں کی قانونی کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو نے 200 ملین روپے بجٹ میں پاس کروائے ہیں. حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے.
मरियम निशात कॉलोनी लाहौर कैंट के रिहायशियों के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तरफ से ट्यूबवेल का तोहफा। इफ्तिताही तकरीब में रुकने कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी और पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा की शिरकत। अली कासिम गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसानों, मजदूरों, नौजवानों की जमात होने के साथ सबसे पहले अकलियतों की जमात है। मुल्तान में अपने हल्के में अकलियतों के लिए 200 मिलियन रुपए का फंड लेकर आया हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तबकात की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवानों की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों की जमात है, लेकिन सबसे बढ़कर पाकिस्तान पे पीपल्स पार्टी हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी की जमात है। मैं अपनी मुल्तान कंटोनमेंट के लिए, जिसमें मेरे मसीही भाई बहन रहते हैं, उनके लिए इस बजट में 200 मिलियन लेके आया हूँ। रुकने कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी ने मजीद कहा कि मरियम कॉलोनी में साफ पानी का मसला है। इस इलाके का सर्वे करवा कर 3 स्कीमें लाए हैं। 5 करोड़ रुपए की लागत से साफ पानी की स्कीम और 3 करोड़ रुपए से सीवरेज की स्कीम होगी। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड से मिलकर कोशिश करेंगे कि ये काम जल्द हो। पीने का साफ पानी का मसला है यहाँ पर, जो हमने एडवन ने और हमने मिल के इस पूरे इलाके का सर्वे करवाया। पहले फेज़ में आपकी 2 स्कीमें, जिसमें ट्यूबवेल है और जो पाइपलाइन है 5 करोड़ 40 लाख रुपए की, वो पहली फेज़ में इंशाल्लाह ताला वाल्टन कंटोनमेंट के जो पैसे मिलेंगे वो मैं आपके एडवन सहूतरा साहब के साथ, अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग वाल्टन कंटोनमेंट के सीईओ के साथ है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी का अक़लियतों को स्कीमें देना कोई एहसान नहीं, बल्कि आपकी मेहनत का एतराफ़ है। पीपल्स पार्टी हर मौके पर आवाम के साथ है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। मरकजी जमीयत अहले हदीस का मजलिस आमला का इजलास अमीर सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम ने सदारत की। इजलास में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से अरकान और रहनुमाओं ने शिरकत की। रुकने साजी के आगाज़ और डिविजनल सतह पर जलसे मुनाकिद करने का फैसला किया गया। मरकजी जमीयत अहले हदीस की मजलिस आमा का इजलास अमीर सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में तंजीम को मजीद फ़ाल और मौसर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में रुकनियत साजी के आगाज़ की मंजूरी दी गई और फैसला किया गया कि डिविजनल और सूबाई सतह पर अवामी जलसे मुनक़िद किए जाएंगे। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में हालिया तबाही पर गहरे अफसोस का इज़हार और मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान किया गया। मरकजी क़यादत ने कारकुनों के जज्बे और कुर्बानियों को सराहते हुए कहा, तंजीमी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम ने इजलास से खिताब में कहा, हमारी सियासत का मकसद जाती मफाद नहीं बल्कि अवामी खिदमत है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए दीनी और सियासी क़यादत को मुत्तहिद होना होगा। इजलास में मौलाना अब्दुल रशीद हजाजी, मौलाना अली मोहम्मद अबू तराब, अलामा मोतसम इलाही ज़हीर, फैसल अफजल शेख, हाफिज़ अब्दुल गफ्फार, हाफिज़ यूनुस आज़ाद, कारी सुहेब अहमद, कारी हनीफ रुबानी और दीगर अरकान ने शिरकत की। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।